हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट.com। और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री और इसका टॉपिक मिल्क पार्ट 1। So now let's talk about milk. So milk is actually the lacteal secretion of mammary glands at least 72 hours after calving. Calving means when calf जो है takes birth, ठीक है। तो उसके एटलीस्ट 72 आवर्स आफ्टर मिल्क आने लगता है। उससे पहले कोलोस्ट्रम आता है 2 to 3 डेज के लिए। सो जब तक जो कोलोस्ट्रम आना बंद नहीं होता तब तक उसको हम मिल्क नहीं बोल सकते हैं। सो कोलोस्ट्रम इज एक्चुअली द secretion of mammary glands during the first 3 to 5 days after calving. So basically you need to know the properties of colostrum. It contains water, fat, lactose and protein, and proteins may be casein, albumin and globulin. So these proteins are present in colostrum. So colostrum has a laxative effect and helps to expel the meconium from fetal digestive tract. तो सो जो fetal का जो fetus का जो digestive tract होता है उसके अंदर जो भी poops वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं बिफोर बर्थ, वो आफ्टर बर्थ उसको एक्सपेल करने में मदद करते हैं कोलोस्ट्रम। तो इट इज़ रिच इन ग्लोबुलिन्स, ठीक है। सो ग्लोबुलिन्स में रिच होता है जिसकी वजह से विच सर्व्स एज द कैरियर ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट द calves against diseases. So ये एज a carrier of antibodies की तरह काम करते हैं। So now the colostrum has more viscosity than, ये मिल्क से जो है थोड़ा सा गाढ़ा होता है। सो अगर आ जाए कि एवरेज विस्कोसिटी ऑफ मिल्क कितनी है, सो दैट इज 1.2 सेंटीपोइस, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आ सकता है एवरेज विस्कोसिटी। एज यू नो ये फॉर डेटा के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। सो वेरी कॉमन दैट दे कैन आस्क दैट की एवरेज viscosity of milk, and but it's not that important, you need to remember it, okay। So now you need to remember the database questions, that is pH of different substances. So first of all, let's just talk about cow milk and buffalo milk. So basically it varies from 6.4 to 6.8 इसके बीच में आता है। और अगर कुछ भी ऑप्शंस आते हैं तो इसके बीच में आपको टिक करके आना है। Silage is acidic in nature, slightly towards acidic like 3.5 to 4.2। और आपको ऑप्शन ऐसे ही देखना है, और 6 to 7 कुछ अगर ऐसा भी ऑप्शन आता है वो टिक नहीं करना है। नेक्स्ट इज कोलोस्ट्रम। सो कोलोस्ट्रम मीन्स 5.7 to 6.4 इसका जो है वो पीएच होता है। और ब्लड, अगर मिल्क फीवर क्या होता है? मिल्क फीवर हाइपोकैल्सीमिया को बोलते हैं, जब कैल्शियम की कमी हो जाती है दूध में। सो दैट इज अ डिसऑर्डर इन केटल्स। सो पीएच ऑफ ब्लड एंड मिल्क फीवर का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। नॉर्मल दूध से जो है उसका पीएच बढ़ जाता है। सो पीएच ऑफ कजीन, ठीक है, दैट इज अ प्रोटीन, और इसका जो पीएच है दैट इज 4.6। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट। So in this slide we will learn about the acidity of milk, that is 0.12 to 0.16%, जो कि बहुत ही कम है। Next is specific gravity. Specific gravity determines the density of milk with respect to water, and it tells that it is heavier than water, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, दैट इज इट इज वाटर की 1 होती है और इसकी 1.0282 वेरी करती है टू 1.032। and the instrument that is used to measure the specific gravity of milk, that is lactometer. So this is important question जो कि आ सकता है from animal husbandry in AF examination. So next is freezing point. Freezing point is minus 0.55 degrees Celsius, and the boiling point is 100.2 degrees Celsius. And refractive index of milk, the refractive index of milk determines how much the path of light is refracted or bent when entering through milk, ठीक है। So that is a 1.344 to 1.3480 at 20 degree Celsius. So moving to next. So now this is a flow chart that you need to remember the composition of milk, ठीक है। So the composition of milk has a major portion of water and total solids,
these categorization is very 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 important to understand SNF and everything. You need to remember this composition very well, otherwise you won't be able to understand the next coming slides. So water is a major constituent and the total solids इसमें होते हैं. Total solids is further divided into two parts, that is fats, and fats are very important from commercial point of view because fats की composition vary करके हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं milk से. And SNF is solid not fat. So fat के अलावा जो भी proteins आते हैं, carbohydrates, minerals, lactose, वो सब कुछ SNF में count होता है. And AFO में questions आ रखे हैं in 2021 एंड उन्होंने काउ मिल्क की SNF पूछा हुआ था. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फैट में भी आगे टू टाइप्स ऑफ फैट्स हैं, ट्रू फैट एंड एसोसिएटिव फैट. एंड एसोसिएटिव फैट में कोलेस्ट्रॉल्स आते हैं, कैरोटीन आता है, विटामिन ए डी एंड ई आते हैं. और अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में भी कैजीन आता है, लैक्टोएल्बुमिन आता है, ठीक है, एंड लैक्टोग्लोबुलिन आते हैं. ठीक है, so let's just move to next. So now we will talk about milk protein and it's made up of, इसमें क्या क्या आता है, कैजीन आता है एंड वे प्रोटीन आता है. कैजीन इज 80% एंड वे प्रोटीन इज 20%. और वे प्रोटीन में लैक्टल एल्बुमिन, लैक्टोग्लोबुलिन्स आते हैं. सो अब हम बात करेंगे अबाउट A1 मिल्क. ओके, सो व्हाट इज A1 मिल्क इज एक्चुअली जो एक्सोटिक ब्रीड देती हैं, दैट इज A1 मिल्क एंड दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ. It's basically not beneficial for health. Why? Because A1 जो मिल्क होता है उसमें A1 बीटा कैजीन प्रोटीन होता है जो कि एक कंपाउंड रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं BCM7. ठीक है, आफ्टर डाइजेशन, जैसे ही डाइजेशन करते हैं हम उसके बाद BCM7 रिलीज होता है जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. So A1 milk is not considered good for much good for health. लेकिन ये अभी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट की डिफरेंट राय है, तो आपको जस्ट वैसे ही थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए. देन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट A2 मिल्क. A2 मिल्क इज एक्चुअली बेटर फॉर हेल्थ. और ये जो है इंडिजिनस गायें जो होती हैं वो देती हैं. ठीक है, so A2 is better for health but A1 is not considered good for health. सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दैट की कैजीन प्रोटीन होता है जो दैट डू नॉट कोआगुलेट आफ्टर हीटिंग बट अदर्स प्रोटीन जो है वो करते हैं, कोआगुलेट कर जाते हैं. सो बेसिकली आपको ये पॉइंट जो है वो याद रखना है दैट कैजीन प्रोटीन जो है वो कोआगुलेट नहीं करता है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट. उसके बाद एक रेकनेगल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फिनोमिना दिया था और 1883 में उन्होंने देखा कि जो मिल्क डेंसिटी होती है वो इंक्रीज करती रहती है बाय दिस अमाउंट. ठीक है, सो 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये कोल्ड स्टोरेज में उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि 2 दिन तक अगर हम दूध को 15 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो ये जो है डेंसिटी, जो मिल्क डेंसिटी है वो इंक्रीज करती जाती रहती है एंड completely स्टॉप कर जाती है एट 5 डिग्री सेल्सियस ओनली आफ्टर 6 आवर्स. अगर आप वही दूध को 5 डिग्री सेल्सियस पर रखोगे तो ये जो डेंसिटी का इंक्रीज होना है वो रुक जाएगा आफ्टर 6 आवर्स ओनली. और इसको आप वैसे भी समझ सकते हो, इसको आप, ये लैंग्वेज जो है वे मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज यही वाली होती है जो सेकंड मैंने बताई है, ये वाले. ठीक है, सो इसको भी आप पढ़ लो. He observed that the density or the specific gravity of the milk is lower than the same milk held for long period of time, especially of the milk under the cold storage. ठीक है, सो ये उन्होंने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया था, ये आपको याद रखना है. और ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा फिनोमिना दिया था. ओके, so now let's just talk about milk composition. So milk composition of different species we will learn here. सर तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम AFO पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो काऊ का जो मिल्क है उसमें वाटर कितना होता है 87.2 एंड बफलो में 82.7% होता है. सो देख लीजिएगा कि काऊ के में वाटर ज़्यादा होता है. और फैट देख लीजिए, सो यहाँ पे आपको फैट कंपेयर करने हैं तो सबसे ज़्यादा फैट जो है वो शीप के दूध में जो है वो पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है. एंड सेकंड नंबर पे बफलो होती है. सो आपके दिमाग में बफलो होती है, आप ज़्यादातर बफलो टिक करके आते हो, बट अगर शीप ऑप्शन में है तो आपको शीप टिक करना है वहाँ पे.
सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट होती है ह्यूमन में, लेकिन अगर ह्यूमन नहीं आ रहा है ऑप्शन में तो आपको देखना पड़ेगा दैट बफलो इज देयर। जो आपको बफलो का जो दूध है दैट इज 5.2, और ये आपको टिक करना है। लैक्टोज सबसे ज्यादा बफलो में पाई जाती है, बफलो के दूध में पाई जाती है। उसके बाद आते हैं टोटल सॉलिड्स। टोटल सॉलिड्स अगेन दैट इज इन शीप, ठीक है, तो शीप में डाले जाते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें अगर SNF तो दैट इज ऑल्सो इन शीप, एंड सेकेंड नंबर बफलो ही आ रही है, सो आपको बफलो ही याद रखना है, ठीक है। और कोलेस्ट्रम की बात कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रम में 5.5% फैट पाए जाते हैं। उसके बाद लैक्टोज पाया जाता है। टोटल सॉलिड जो है वो भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर आपको SNF निकालना है तो SNF हमने क्यों नहीं यहाँ पे मेंशन किया, बिकॉज टोटल सॉलिड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे फैट दिया हुआ है, तो आपको पता है टोटल सॉलिड्स फैट प्लस टोटल सॉलिड्स SNF और फैट को मिला के बोलते हैं, तो आपको ये माइनस करना होगा। यहाँ पे ये वेरी करता है इसलिए हमने इसको माइनस करके नहीं देखा है, लेकिन आप खुद माइनस करके देख सकते हैं। आप टोटल सॉलिड्स में से फैट को माइनस करके SNF की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने एक ओवरऑल आपको बता रखा है सो दैट आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सो ये वैल्यूज भी कई बार AF में पूछ जाते हैं, ये थोड़ा रेंज में बता रखी हैं वैल्यूज। सो क्वेश्चन ये आया था दैट SNF इन काउ मिल्क इज, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था AFO में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और ये देख लीजिए दैट इज 8.5, और इन सब के 9% होता है, और बफलो में 5 to 6% फैट होती है, एंड शीप और गोट में 3%। और यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा जनरल ये चीज़ याद रखनी है। वो टेबल थोड़ा सा ब्रॉड था, ये आपको मेन बात जो है फैट जो है इंपॉर्टेंट होती है, आपको मैंने पहले भी बताया था कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। सो ये काओ की डिफरेंट ब्रीड्स हैं। सो इसमें आती है जर्सी काओ, जो कि उसमें फैट कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये क्वेश्चन आई थिंक AFO में पहले भी आ चुका है, आपको ये चीज़ अच्छे से याद करनी है दैट कौन सी ब्रीड है जिसमें सबसे ज़्यादा फैट जो है पाया जाता है, दैट इज़ 5.3 इन जर्सी ब्रीड, एंड द SNF इज 9.5। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है, और SNF भी इसमें मैक्सिमम है, ओके। सो इसके आपको बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये जो जर्सी में फैट ज़्यादा होता है ये चीज़ बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और टोटल सॉलिड्स भी इसी में ज़्यादा है, ठीक है। सो मैक्सिमम चीज़ जो होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो तो आपको पक्का ही याद रखनी ही पड़ती है, ठीक है, ओके। और अब आपको कुछ बातें जो हैं वो याद करनी रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जो बफलो का मिल्क होता है दैट हैज़ लो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है एज कम्पेयर टू काऊ का मिल्क, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज़ रिच इन कैलोरीज, फैट, कैल्शियम, एंड इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस। वेरएज़ अगर आप काऊ की मिल्क की बात करोगे उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और फैट कम होता है, और कैलोरीज भी लेस होती है एज कम्पेयर टू बफलो मिल्क। सो जनरली एक मतलब नोशन बना हुआ है इंडिया में दैट काउ इज कंसिडर्ड मोर सुपीरियर टू बफलो, बट बफलो में बहुत सारी बफलो के मिल्क में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी हैं एज कम्पेयर टू काउ मिल्क। सो आपको ये जो नोशन है इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है। सो बोथ आर गुड, बट यू नीड टू इफ यू आर कंपेयरिंग दैट यू शुड नो दैट कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बफलो के मिल्क में थोड़ा कम होता है, ओके। सो नाउ द क्वेश्चंस आर, तो क्वेश्चन आ जाते हैं द लीस्ट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क इज, ठीक है। सो अगर ये MCQs टाइप क्वेश्चन है तो लीस्ट वेरिएबल अगर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क पूछा जाए तो दैट इज लैक्टोज, ठीक है। और अगर पूछा जाए हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क दैट इज फैट एंड लिपिड। सो नाउ इसका मतलब क्या है दैट कि जो मिल्क है उसमें डिपेंड करता है कि आप जैसे पशु को डाइट दोगे, जैसी डाइट दोगे वैसा दूध मिलेगा, तो वो फैट जो कंटेंट है ना वो डाइट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, इसलिए वो वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क होता है, ठीक है। वो चेंज करता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ डाइट, ठीक है, तो फैट का कंटेंट। लेकिन जो लैक्टोज होता है वो लेस वेरिएबल होता है, लैक्टोज हर दूध में होगा ही होगा, ठीक है।
ठीक है। बट अगर डाइट के अकॉर्डिंग डिपेंड कौन करेगा, दैट इज फैट एंड लिपिड। उसके बाद आता है जो लैक्टोज है, दैट इज हाईली अनस्टेबल पार्ट ऑफ द मिल्क। सो ये अनस्टेबल एंड वेरिएबल में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो लैक्टोज जो होता है वो अनस्टेबल क्यों होता है मिल्क में, बिकॉज जो मिल्क होता है उसको बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल पार्ट होता है और ये फर्मेंट हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपको वर्ड्स ध्यान से पढ़ने होंगे सो दैट आप कभी कुछ गलत नहीं करके आओ इन एग्जाम, ठीक है। सो आपको ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूजन क्लियर करनी होगी दिमाग में, ठीक है। सो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, दैट एसिड जो मिल्क में प्रेजेंट होता है दैट इज लैक्टिक एसिड, ठीक है। एंड मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड आयरन। सो क्वेश्चन आ सकता है कि मिल्क में आयरन एब्सेंट होता है, तो आपको यही पॉइंट अच्छे से याद करना है, विटामिन सी एंड आयरन इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। Also, it is a source of good source of vitamin, calcium and B2 vitamin, that is riboflavin उसका नाम होता है। so ठीक है। so enzyme जो यूज करते हैं टू सेपरेट दिस मिल्क इनटू सॉलिड कर्ड्स एंड लिक्विड वे, मतलब यार आपको सीधी सी बात है, दूध को अगर आपने जैसे क्या कहते हैं हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में दूध फट जाना, ठीक है। सो अगर आपको दूध को फटवाना है सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको एंजाइम कौन सा यूज करना पड़ेगा, दैट इज रेनेट। रेनेट जो होता है वो चीज बनाने में काम आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो फैट होती है दैट इज इमल्शन इन मिल्क, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोटीन होता है दैट इज कोलाइडल इन द मिल्क, ठीक है। इमल्शन एंड कोलाइड अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा जाके गूगल पे सर्च करना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हैं। वैसे केमिस्ट्री में 9th 10th में अच्छे से पढ़ा देते हैं, ओके। उसके बाद फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन इज वर्गीज कुरियन, एंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड किसको बोलते हैं, मिल्क वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, जो कि 1970 में आया था। इसको वाइट रेवोल्यूशन बोल लो, ऑपरेशन फ्लड बोल लो। और ये 3 फेजेस में चला था। राउंड 1 फ्रॉम 10 ईयर्स का था, फ्रॉम 70 to 80, देन 81 to 85 एंड देन 85 to 96। एंड इससे हमारे देश में जो है वो मिल्क की जो प्रोडक्शन थी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। हमारा देश जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। सो मेथड्स दैट आर यूज्ड टू डिटेक्ट द मिल्क प्रोटीन, मिल्क में अगर प्रोटीन चेक करना है सो डेल्जल मेथड इज यूज, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम आपको याद रखना है प्रोटीन को चेक करने के लिए, ठीक है, दैट इज डेल्जल मेथड। सो अब आपको मैंने ये बताया था कि मिल्क में आयरन जो होते हैं वो नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। सो दैट इज वाई द मिल्क इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट फूड। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अगर आपको रॉ मिल्क की क्वालिटी टेस्टिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको मिल्क में एसिडिटी को टेस्ट करना है तो आप अल्कोहल टेस्ट जो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो इस बात को आपको याद रखना है। सो बेसिकली अगर मिल्क में हाई एसिडिटी डेवलप हो चुकी है, आपको मैंने पढ़ाया था ना कि कितनी एसिडिटी चाहिए मिल्क में, अगर सपोज हाई एसिडिटी डेवलप हो गई है तो उस मिल्क को हम पास्चराइजेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो हमें चेक करने के लिए कि इफ द मिल्क इज सूटेबल फॉर द पास्चराइजेशन और एंड अदर हीट ट्रीटमेंट, तो हमें क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको सूटेबिलिटी चेक करनी है तो दैट इज क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट करते हैं, और अगर आपको एसिडिटी चेक करनी है सो अल्कोहल टेस्ट इज यूज्ड। सो देन इज हंसा टेस्ट। सो हंसा टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, ये अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए यूज होता है, दैट इफ काउ मिल्क जो है वो बफलो मिल्क के साथ अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, मिला तो नहीं है। सो हंसा टेस्ट इज यूज्ड, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, तो A4 में क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। सो दिस वाज अ क्वालिटी। So now we will talk about pasteurization. Pasteurization क्यों करते हैं? To minimize the health hazards arising from the pathogenic microorganisms that are associated with milk. So basically हम 3 types जो होती हैं, low temperature long time, ठीक है, and high temperature short time. So this way the pasteurization is done, and low temperature that is 63 degrees Celsius, ठीक है, for 1800 seconds, that means 30 minutes के लिए हम करते हैं, that is a long time। इसको हम होल्डिंग और बैच मेथड भी बोलते हैं। एक तो ये तरीका है, ठीक है। एंड सेकेंड वे इज
हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, सो इसमें हम 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 20 सेकेंड्स के लिए करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज फ्लैश पास्चराइजेशन। और क्रीम के लिए हम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम यूज़ करते हैं, और इसमें हम 80 डिग्रीज टेम्परेचर रखते हैं फॉर 15 सेकेंड्स। सो उसके बाद जैसे ही हम हाई टेम्परेचर देते हैं, देन मिल्क इज कूल टू 10 डिग्री सेल्सियस जस्ट आफ्टर पास्चराइजेशन ट्रीटमेंट, ठीक है। इससे 99% ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, और ये बेसिकली हम इसलिए ही करते हैं ताकि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल्क के अंदर होते हैं वो थोड़े कम हो जाएं, ठीक है। सो बेसिकली जो क्वेश्चन आया था ईएफओ में वो ये था कि हम कौन सा टेस्ट है जिससे हमें पता चलेगा कि जो मिल्क है वो सही से पास्चराइज हुआ है या नहीं। सो दैट इज अल्कलाइन फोस्फेट टेस्ट, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन ऑलरेडी केम इन ईएफओ, सो दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देयर इज अनदर प्रोसेस कॉल्ड एज होमोजेनाइजेशन इन मिल्क। सो व्हाट इज होमोजेनाइजेशन? इसमें क्या होता है, जो फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क में वो बहुत उनका साइज बड़ा होता है, तो उसको हम स्मॉल साइज में जो है होमोजेनाइजेशन में इस प्रोसेस में उसको स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि क्रीम की कोई भी लेयर फॉर्मेशन ना हो, ठीक है, टू प्रिवेंट क्रीम लेयर फॉर्मेशन। सो होमोजेनाइजेशन इज डन, ठीक है। सो next is Stassionization, and this is done this was discovered by Henry Stassinet in France, ठीक है। सो ये भी एक पेस्चराइजेशन का मेथड है। इसमें क्या होता है, द प्रिंसिपल इज द हीटिंग ऑफ द मिल्क टू द डिजायर्ड टेम्परेचर बाय पासिंग इन बिटवीन टू वाटर हीटेड पाइप्स थ्रू नैरो स्पेस, मतलब बहुत ज़्यादा नैरो स्पेस होती है, दैट इज 0.6 to 0.8 mm, और उसके उन नैरो स्पेस में से दूध को पास किया जाता है वाटर हीटेड पाइप्स, ठीक है, वाटर से हीट करते हैं पाइप्स को, ठीक है। सो 74 डिग्री सेल्सियस और 7 सेकेंड्स के लिए हम इसको करते हैं, मिल्क को पैस्चराइज हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज दिस यू नीड टू रिमेंबर। So now we will talk about MBRT. MBRT मतलब मिथाइलिन ब्लू डाई रिडक्शन टेस्ट। सो यहाँ पे हम मिथाइलिन ब्लू डाई जो है, ब्लू कलर की डाई है, उसको दूध में डालते हैं टू चेक कि यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजिकल जो काउंट है वो कैसा है मिल्क का, ठीक है, तो चेक द क्वालिटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ द रॉ एंड द पास्चराइज मिल्क। सो जब हम ये डाई डालते हैं इसका ब्लू कलर होता है, तो इस टेस्ट में ऐसे होता है कि जितना टाइम ज़्यादा लगेगा डाई को डिसकलर होने में, ब्लू से डिसकलर होने में जितना टाइम ज़्यादा लगता है उतना अच्छी क्वालिटी का दूध होता है, ठीक है। सो ये टेस्ट ये बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर 5 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है डाई को डिसकलर होने में, या 5 मिनट से ज़्यादा लग जाता है, सो इट मीन्स जो दूध है वो अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन अगर वही डाई जो है वो आधे मिनट में या आधे मिनट से भी कम टाइम में डिसकलर हो जाती है, ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाता है, सो दैट मीन्स मिल्क इज ऑफ बैड क्वालिटी। दिस वे इस टेस्ट को हम यूज करते हैं, ठीक है। सो ये इट्स बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है, टाइम देखते हैं 5 मिनट लगा, आधा मिनट लगा, सो इट इज बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है। ग्रेडिंग मिल्क की कैसे हो रही है, टाइम के बेसिस के ऊपर। फिर आता है रेजाजुरिन रिडक्शन टेस्ट। अब ये इसका सिमिलर ही है एमबीआरटी के, बट इसमें फिक्स्ड टाइम होता है, और इसमें हम कोई कलर शेड्स जो होती हैं उसको और उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करके बताते हैं कि जो दूध की क्वालिटी है वो कैसी होगी, ठीक है। सो ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हम टाइम देखते हैं कि 5 मिनट लगा, आधा मिनट लगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं दूध कैसा होगा। लेकिन ये जो टेस्ट है ये बताता है ऑन द बेसिस ऑफ शेड ऑफ द कलर, ठीक है। इट हैज़ फिक्स टाइम, मतलब 5 मिनट में वो देखेंगे वो, ठीक है। तो 5 मिनट सपोज वो रखेंगे तो उसी में वो देखेंगे कि कलर कैसा, शेड ऑफ द कलर्स देखेंगे, इंटेंसिटी कलर देखेंगे, तो ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो ये मैंने आपको रॉ मिल्क तक ये आज मैंने पार्ट 1 में कवर किया, बाकी का हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट लगता है कि हमें अभी लाने की ज़रूरत है कंटेंट में, किसी भी चीज़ में, आप हमें बता सकते हैं, हम डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे। और यार कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत चीज़ें लगती हैं, बहुत टाइम भी लगता है, ठीक है, पूरा दिन लग जाता है, इन्वेस्ट होता है हमारा।
सो अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, अप्रिशिएट ज़रूर करना, और अगर बुरा भी लगता है तो फिर भी बता के जाना कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे सुधारो, ठीक है। हम डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं, प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर देके जाना। थैंक यू।